students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today we have to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 12, Earth's landforms. So as we all know, हमारे Earth पर different types के landforms हैं. So उन्हीं के बारे में आज हम discuss करेंगे. The Earth surface is made up of various landforms. हमारा जो Earth का surface है, वो different variety के landforms से बना है, जिसमें आपके mountains, valleys, plains, plateaus, deserts ये सभी included है. Now these landforms shape the landscape and influence the way we live. They are formed through natural processes over millions of years. ये landforms क्या हमारे landscape को shape provide करते हैं and influence करते हैं कि हम उस particular landform में किस तरीके से रहेंगे. ठीक है, कैसे ये different landforms का formation हुआ है? Through natural processes. कुछ natural processes जो millions of years से चलते रहे तब जाके ये different types के landforms का formation हुआ. लैंडफॉर्म्स क्या है? बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज ऑफर करते हैं जैसे कि मिनरल्स एंड वाटर. काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पे जाते हैं, है ना. हाइकिंग, क्लाइंबिंग, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करना, ये सभी एक्टिविटीज़ को ये जाके टूरिस्ट वहाँ जाके इंजॉय करते हैं. So now we have to discuss about the types of landforms. So number one is mountains. Mountains क्या है? Large landforms, बड़े बड़े landforms that rise prominently above their surroundings. जो अपने surroundings से usually ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं and इनका जो shape होता है काफ़ी steep होती है and एक significant height distance होता है from the base to the peak. ठीक है, base से peak तक का काफ़ी height distance इनका होता है. You can see this is your mountain. We are formed by tectonic forces of volcanism. Tectonic forces and volcanisms की वजह से इनका formation होता है. Mountains climate को and किसी भी area के weather pattern को बहुत ज़्यादा affect करते हैं. कुछ famous examples include जैसे कि Mount Everest जो कि हमारे world का highest mountain है. कहाँ located है? हिमालयाज में. Next is Mount Kilimanjaro which is in Africa. Rocky Mountains which is in North America and Alps in Europe. ये सभी कुछ well known mountain ranges हैं. Okay. Next is hills. Hills are also similar to mountains only. ये भी mountains की तरह ही होते हैं लेकिन थोड़े छोटे होते हैं. Generally mountains से small होंगे and less steep होते हैं. Usually they have a more rounded top compared to the pointed peaks of mountain. माउंटेन्स की जो पीक होती थी वो काफ़ी पॉइंटेड होती थी लेकिन इनकी जो टॉप होता है वो राउंडेड शेप का होता है, कुछ इस तरीके से. ओके, हिल्स आर फॉर्म थ्रू द एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और द इरोजन ऑफ लार्जर लैंडफॉर्म. बड़े बड़े लैंडफॉर्म के इरोजन की वजह से या रॉक डेब्रिस के एक्यूमुलेशन की वजह से हिल्स का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट वी कम टू प्लेट्यूज. प्लेट्यूज कैसे होता है? फ्लैट elevated areas हैं that have been uplifted by tectonic activity or volcanic activity. You can see this is plateau. Flat होते हैं लेकिन थोड़े से ऊंचे elevated areas होते हैं. कैसे बने? tectonic activity या volcanic activity के effect से ही. इनको कैरेक्टराइज किया जाता है इनके फ्लैट टॉप्स के. जो टॉप वाला पीक होगा बिल्कुल फ्लैट होगा एंड यूजुअली आपको वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं. प्लेट्यूज बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्योंकि इनका सरफेस कैसा होता है? फ्लैट होता है एंड काफ़ी अच्छा मिनरल डिपॉजिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है. एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू विच इज़ इन इंडिया, कोलोराडो प्लेट्यू विच इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेट्यूज. And now next we come to plains. Plains are large, flat and gently rolling areas of land with few changes in elevation. Plains, you can see this is plain area, काफ़ी large, flat होते हैं and rolling areas होते हैं generally land के जिसमें elevation में कुछ few changes आते हैं. Usually आपको lower elevations में मिलते हैं and earth surface का काफ़ी अच्छा खासा पार्ट कवर करते हैं मोर देन एनी अदर प्लेटफॉर्म. किसी भी बाकी लैंडफॉर्म के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जो अर्थ का सरफेस कवर्ड है दैट इज़ विद प्लेन्स ओनली. ठीक है, प्लेन्स आर ऑफन हाईली फर्टाइल. ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं एंड इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है. काफ़ी आइडियल कंडीशंस यहाँ पे होती हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, लाइफ स्टॉक को रेस करने के लिए. एग्जाम्पल ग्रेट प्लेन्स इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट प्लेन्स हैं, पेम्पाज है साउथ अमेरिका में. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन्स. नाउ नेक्स्ट वी कम टू वैलीज. वैलीज आर द लो एरियाज. हिल्स या माउंटेन्स के बीच जो लो एरिया होता है
टिपिकली विद अ रिवर और स्ट्रीम रनिंग थ्रू दैम, जिसके थ्रू क्या रिवर या स्ट्रीम रन करती है उसको वैली कहा जाता है। यू कैन सी दिस आर टू हिल्स एंड इसके बीच में ये जो आपका क्या जा रहा है लो एरिया है जहाँ पे एक रिवर या स्ट्रीम फ्लो कर रही है, इसे आप वैली कहते हैं। दे आर फॉर्म बाय द इरोसिव एक्शन ऑफ वाटर ओवर लॉन्ग पीरियड थ्रू द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर। कैसे बनते हैं ये? जब वाटर का इरोसिव एक्शन होता है काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक, या फिर ग्लेशियर्स के मूवमेंट की वजह से भी वैलीज का फॉर्मेशन होता है। सो सेवरल टाइप्स की वैलीज हैं जिसके अंदर आपका वी शेप्ड वैली भी इंक्लूडेड है जो कि रिवर इरोजन की वजह से बना है, यू शेप्ड वैली जो कि ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से क्रिएट होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वैलीज। सी ग्रैंड कैनियन इन यूनाइटेड स्टेट जो कि एक रिवर वैली है, योसेमाइट वैली इन द यूनाइटेड स्टेट विच इज अ ग्लेशियर वैली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ माउंटेन्स फॉर्म। माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए हैं? सो माउंटेन्स आर फॉर्म बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट। अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके मूवमेंट की वजह से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। सो व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, जब दो प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं, सो जो लैंड है बीच में से वो पुश अप यानी कि ऊपर की तरफ पुश होती है एंड तब जाके माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। इस प्रोसेस को हम ओरोगेनी बोलते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू माउंटेन्स भी क्रिएट होते हैं। जब मैग्मा जो है अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट से मैग्मा इरप्ट होता है एंड सरफेस जो है उसको हार्ड कर देता है, तब जाके आपके माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्टोनिक प्लेट्स ये क्या है? जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर विच इज नोन एज क्रस्ट, उसको डिवाइड किया जाता है बहुत बड़े बड़े पीसेस में जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स क्या कहते हैं? स्लोली मेंटल के ऊपर मूव करती हैं जिसकी वजह से लैंड शिफ्ट होती है थोड़ी थोड़ी एंड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। सो व्हाट आर वॉल्केनिक माउंटेन्स? व्हेन मैग्मा इरप्ट्स फ्रॉम अ वोल्केनो, जब एक वोल्केनो में से मैग्मा बाहर इरप्ट होता है एंड उसके बाद कूल होकर हार्ड हो जाता है, तब भी माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल माउंट सेंट हेलेन एंड माउंट फूजी। नेक्स्ट इज इरोजन। सो ओवर टाइम विंड वाटर एंड आइस कैन इरोड माउंटेन्स शेपिंग देम इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। टाइम के साथ विंड वाटर आइस ये धीरे धीरे माउंटेन्स को इरोड करने लगते हैं एंड तब जाके ये डिफरेंट फॉर्म्स में इनकी शेप आने लगती है। नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म चेंजेस। सो लैंडफॉर्म चेंज ओवर टाइम ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस। टाइम के साथ लैंडफॉर्म्स चेंज भी होते रहते हैं नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, जैसे कि इरोजन, वेदरिंग, टेक्टोनिक एक्टिविटी। ओके, विंड वाटर एंड आइस से होने वाला इरोजन क्या करता है? इससे माउंटेन वैलीज एंड प्लेन्स की शेप आती है। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। सो वेदरिंग की वजह से जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे पीसेज में। टेक्टोनिक एक्टिविटी न्यू लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं एंड जो एग्जिस्टिंग वाले हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनको एक न्यू शेप भी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से या टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ही मिलती है। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो इम्पैक्ट लैंडफॉर्म्स। ह्यूमन एक्टिविटीज का लैंडफॉर्म्स पे भी एक इम्पैक्ट होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सभी क्या करते हैं? लैंडस्केप को ऑल्टर कर देते हैं। सो क्या इन सभी लैंडफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करना एंड प्रिजर्व करना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ओके, चलो। So these were the different types of landforms and the formation process which we have discussed today. So that's all for today. I hope it was very clear to you. So we'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.